Hello students and welcome to NEET Express Part B. So today we are going to discuss Plant Kingdom chapter. In the last few classes we discussed about the living world and biological classification. In biological classification chapter मैंने आपको बताया था कि R.H. Whittaker ने 5 kingdom system of classification दिया था जिसमें he discussed about the Plantae kingdom. प्लांट किंगडम के बारे में तो आपका बाकी सारे किंगडम सिस्टम्स 2, 3, 4 में भी डिस्कशन हुई थी. तो हम अभी आई टोल्ड यू कि वी आर गोइंग टू डिस्कस R.H. Whittaker सिस्टम इन डिटेल. इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम. तो प्लांट किंगडम में वी नो दैट all the organisms which contain chlorophyll, which can synthesize their own food with the help of carbon dioxide, water and sunlight to form glucose, they are referred as plants, and plants are placed in the kingdom Plantae. So we are going to study in detail about the groups of plants in this chapter. So let's start. Now, organisms which are eukaryotic, plants are eukaryotic. They have well-defined nucleus, membrane-bound organelles, and they have chlorophyll in their chloroplast. Chlorophyllous, they are photosynthetic. They use light energy to synthesize their own food. They contain cell wall composed of cellulose, and these organisms are referred as plants. They are placed in the plant kingdom. Okay. Now we have cryptogamy. Plants are divided into two categories, cryptogamy and phanerogamy. In cryptogamy, cryptos means hidden. So here the sex organs are hidden and their fusion is hidden. So fusion of gametes in the sex organs is hidden. तो यहाँ पर hidden marriage होती है. So algae, bryophytes and pteridophytes में sex organs are hidden and the fusion is also hidden. Phanerogamy. Phanerogamy में phanero means visible and gamy means marriage. तो यहाँ पर sex organs भी visible है और उनके बीच में जो fusion of gametes है वो भी visible है. तो gymnosperms और angiosperms में marriage is visible. They are phanerogams. Moving on. In the last chapter also we discussed that Linnaeus gave two kingdom system of classification. He classified organisms into Plantae and Animalia. He further classified plants as well. So Linnaeus divided kingdom Plantae into two broad categories, cryptogamy and phanerogamy. Cryptogamy are the ones which show hidden marriage, in which you have Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. Thallophyta में are those plants जिनकी body organization root, stem और leaf में differentiated नहीं है, उनकी body thallus like है. The body is not differentiated, तो algae और fungi वो placed in Thallophyta. Fungi later on एक separate kingdom में place किया गया था, Whittaker की classification था. Linnaeus की classification में fungi was still placed in plants. But now fungi have been removed from the plant kingdom and has been moved to a separate kingdom called fungi. Then we have Bryophyta. Bryophyta में हमारे पास तीन categories of organisms हैं. Hepaticopsida में liverworts आते हैं, Anthocerotopsida में hornworts आते हैं और Bryopsida में mosses आते हैं. Okay. Then we have Pteridophyta. इसमें हमारे पास again 4 groups हैं. Lycopsida, Sphenopsida, Psilopsida and Pteropsida. Phanerogams are those plants जिनमें marriage hidden नहीं है. It is यहाँ पर आपके sex organs, plants के sex organs हैं, they are visible and the fusion, the marriage is also visible. Gymnosperms में naked seeds होती हैं, उनमें आपके cycadales, coniferates और details आते हैं. और angiosperms में seeds are covered, they are present inside the fruit. Dicots और monocots आते हैं. ठीक है, तो this is a very important flow chart, you should remember it. Moving ahead, now we are going to discuss about the classification systems in plants. We have artificial system of classification, which was the earliest system of classification in the plants. It was based on one
और few morphological characters. या तो एक कैरेक्टर को देखा जो आपको आंखों से दिख रहा है, एक्सटर्नल अपीयरेंस प्लांट का, वो कैरेक्टर को देखकर आपने प्लांट्स को कैटेगराइज कर दिया, या फिर तो एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स भी आपने कंसिडर प्लांट्स को कैटेगराइज कर दिया. प्लांट्स को आपने ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ दोज कैरेक्टर्स विच यू आर स्टडिंग, उनके बेसिस पर आपने उन्हें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ सुपरफिशियल कैरेक्टर्स जो आपको लेकर आए से दिख रहे हैं, जैसे कि उनका हैबिट क्या है, उनका लीव्स और का शेप और कलर क्या है, लीव्स का शेप कलर क्या है, प्लांट्स का हैबिट क्या है, इन बेसिस पे आपने प्लांट्स को कैटेगराइज किया है. द सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स. See, we have two types of characters in the plants. Vegetative characters are like root, stem, leaf. Reproductive characters are like sex organs कैसे हैं, flower कैसा है. तो जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं, उनमें चेंजेस आने के चांसेस हैं. रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स इतनी जल्दी चेंज नहीं होते हैं. सो दिस वाज वन ऑफ द डीमेरिट कि हमने यहाँ पे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को कंसिडर किया है, सुपरफिशियल कैरेक्टर्स को कंसिडर किया. वी हैव नॉट कंसिडर्ड एनाटमी, वी हैव नॉट कंसिडर्ड जेनेटिक स्टडी, वी हैव नॉट कंसिडर्ड क्रोमोसोम नंबर. सो इस तरह के कैरेक्टर्स को हमने कंसिडर नहीं किया है. तो ये आपको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में ग्रुपिफाई क्लासीफाई नहीं करता है प्लांट्स को. So based on vegetative characters and also the androecium, that is the male sex organ, group of stamens, structure के बेसिस पे इस सिस्टम में हमने प्लांट्स को क्लासीफाई किया है. क्योंकि हमने इसमें एंड्रोशियम को भी कंसिडर किया है, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेक्शुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इस सिस्टम की प्रोपोनेंट्स, इस सिस्टम को प्रपोज करने वाले दो साइंटिस्ट हैं. वन इज एरिस्टोटल एंड अदर इज लिनेयस. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो इस सिस्टम के डीमेरिट्स मैंने आपको बताया कि इसमें आपके बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ही कंसिडर हुए हैं. एम्ब्रियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइटोकेमिस्ट्री कुछ भी कंसिडर नहीं हुआ है. तो इसके बाद एक और सिस्टम आता है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. Natural system of classification is based on natural affinities, natural similarities. So यहाँ पर थोड़े ज़्यादा features consider होते हैं. It is more detailed और ज़्यादा features consider करके हम देखते हैं कि किस में ज़्यादा similarities हैं, and जिन plants में ज़्यादा features similar होंगे उनका हम group बनाते हैं और उन्हें एक group में classify कर देते हैं. जिनमें dissimilarities हैं उन्हें हम अलग अलग groups में place कर देते हैं. So they are based on natural affinities or similarities. They are considered external and internal features. They are based on the external, जो आपको morphological बाहर से features दिख रहे हैं, और internal features like anatomy, embryology, your biochemistry. Anatomy is internal organization. Embryology is study of embryo formation and its development. Reproductive development. फाइटोकेमिस्ट्री मतलब प्लांट के अंदर किस तरह के केमिकल कंपाउंड्स मिल रहे हैं, ये भी हम स्टडी करते हैं. इट वॉज प्रपोज बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर. इसका भी डीमेरिट था कि इन्होंने एंसेस्ट्रल स्टडी को कंसिडर नहीं करा, इन्होंने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसिडर नहीं करा, कहाँ से ओरिजिन हो रहा है प्लांट्स का, ये सब चीज़ें कंसिडर नहीं करी. तो इस सिस्टम के डीमेरिट्स को हटाने के लिए एक और नया सिस्टम प्रपोज किया गया जिसका नाम है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. Phylogenetic system of classification is based on evolutionary relationship. यहाँ पर हमने फॉसिल रिकॉर्ड्स को कंसिडर किया. जो प्लांट्स अब हमारे पास नहीं है, एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, मे बी दे हैव बिकम एक्सटिंक्ट, उनके फॉसिल रिकॉर्ड्स की स्टडी करी गई. उनसे हमने एंसेस्ट्रल स्टडी से देखा कि कैसे प्लांट्स का ओरिजिन हुआ है. इट कंसिडर्स एंसेस्ट्री, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स. The system was proposed by Angler and Prandtl. तख्ताजान, हटचिंसन. तख्ताजान ने एक स्टेटमेंट दी थी कि टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज जस्ट लाइक बोन विदाउट फ्लैश. अगर आप सिर्फ बोन्स देखते हो और उसके पास फ्लैश नहीं है तो ऑर्गेनिज्म कैसा हुआ, वो तो एक स्केलेटन हो गया.
वैसे ही अगर आप टेक्सोनॉमी की स्टडी कर रहे हो, ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हो, उसकी नॉमेनक्लेचर, उसकी क्लासिफिकेशन की स्टडी कर रहे हो और उसमें आप फाइलोजेनेरी कंसिडर नहीं कर रहे, तो वो स्टडी अधूरी है, वो स्टडी कंप्लीट नहीं है। वो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे कि बोन विदाउट फ्लैश। मूविंग ऑन। नाउ वी हैव डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनॉमी। अभी हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम डिस्कस किए थे। वी हैव डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनॉमी जिसमें हमें डिस्कस करना है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के बारे में बात करते हैं। इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय माइकल एडमसन, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज एडमसोनियन टेक्सोनॉमी। इसमें कंप्यूटर्स का यूज़ हुआ गया था और कंप्यूटर्स के अंदर आपका एक्सेल शीट बना के एक साइड पे फीचर्स थे और उन फीचर्स में वो फीचर पर्टिकुलर प्लांट्स में प्रेजेंट अगर है तो आपने साइन यूज़ किया था प्लस या 1, और अगर वो फीचर एब्सेंट है तो यू यूज़ साइन माइनस और 0। तो क्योंकि आपने न्यूमेरिकल्स का यूज़ किया है इस स्टडी में, तो इस क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में, तो इसे हम न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बोलते हैं। एक्सेल शीट आप टैक्स शीट की तरह बना रहे हो तो इसे टेक्सीमेट्रिक्स भी बोलते हैं, और माइकल एडमसन ने इन्हें प्रपोज किया है तो एडमसोनियन टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं। इन्वॉल्व्स यूसेज ऑफ न्यूमेरिकल्स और कोड्स, 1 फॉर प्रेजेंट एंड 0 फॉर एब्सेंट, तो इसे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी और टेक्सीमेट्रिक्स भी बोलते हैं। कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। इट कंसिडर्स हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स एट अ टाइम, बहुत सारे कैरेक्टर्स एक साथ कंसिडर होते हैं। और ऑब्जर्वेबल मतलब आपका यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ज़्यादातर कंसिडर होते हैं, तो इसे हम फेनेटिक्स भी बोलते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी, दैट इज साइटोटेक्सोनॉमी। साइटो वर्ड का मतलब है सेल। साइटोटेक्सोनॉमी में सेल के अंदर न्यूक्लियस भी आ जाता है, तो हम न्यूक्लियस की स्टडी भी करते हैं। तो साइटोटेक्सोनॉमी को कैरियोटेक्सोनॉमी भी बोल देते हैं। कैरियो हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कैरियन, जिसका मतलब है न्यूक्लियस। इट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, स्टडी ऑफ सेल। एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस की स्टडी भी होती है, तो इसलिए हम इसे कैरियोटेक्सोनॉमी भी बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, तो हम क्रोमोसोम का नंबर स्टडी करते हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं और क्रोमोसोम का बिहेवियर स्टडी करते हैं इन साइटोटेक्सोनॉमी। नेक्स्ट वी हैव इज कीमोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी के अंदर हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दी सेल को कंसिडर करते हैं कि किस तरह के केमिकल कंपाउंड सेल में प्रेजेंट हैं। अगर सिमिलर तरह के कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं तो उन प्लांट्स को हम एक ग्रुप में डाल देते हैं, और अगर डिसिमिलर तरह के कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं तो वी प्लेस देम इन अ सेपरेट ग्रुप्स। सो दिस इंक्लूड्स डीएनए सीक्वेंसिंग, chemical nature of proteins, aromatic compounds and crystals like calcium oxalate crystals को हम रेफिड्स भी बोलते हैं, and calcium carbonate crystals like cystolith. So we have dealt with the classification system, branches of taxonomy. Moving ahead, to first discuss, we have 5 groups of plants we discuss in the Linnaeus classification. We have algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. In this chapter, we are going to study in detail about algae, bryophytes, pteridophytes and gymnosperms. Angiosperms की डिटेल में आपका दिया हुआ है क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में भी आपको एंजियोस्पर्म्स की डिटेल दिया हुआ है। तो मॉर्फोलॉजी हम इसी सेशन में करेंगे, मतलब आई मीन नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है वो नीट एक्सप्रेस के फर्स्ट पार्ट में कोर्स में डिस्कस कर दिया गया है। तो इफ़ यू हैव मिस्ड इट आउट, यू कैन वॉच द वीडियो ऑफ this particular chapter, sexual reproduction in flowering plants, in the first part of the NEET Express course. Moving ahead, so algae are autotrophic because they are plants. They can synthesize their own food. They are non-embryophytes. एल्गी के अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता है। एम्ब्रियो कैसे बनता है? जब मेल और फीमेल गेमीट फ्यूज करता है तो इट फॉर्म्स जाइगोट। जाइगोट में डिविजन होती है एंड फर्दर इट फॉर्म्स एम्ब्रियो। पर एल्गी के अंदर जाइगोट में
डिविजन माइटोसिस ना होके मियोसिस होती है, और डिप्लॉइड जाइगोट में मियोसिस होके फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। इस तरह की मियोसिस को हम जाइगोटिक मियोसिस भी बोलते हैं। बट नॉर्मली जाइगोट के अंदर माइटोसिस होती है और फिर वो डिप्लॉइड जाइगोट से डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनता है। बट एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता, सो इट इज़ कॉल्ड एज नॉन एम्ब्रियोफाइट। इट इज़ ए ट्रैक्योफाइट। ए ट्रैक्योफाइट में यहाँ पे ट्रैकिया वर्ड का मतलब है वास्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम। सो एल्गी के अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं मिलते, दैट इज़ वाई ए ट्रैक्योफाइट्स एब्सेंट है ट्रैकिया यहाँ पर। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं, फाइट्स का मतलब प्लांट्स, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें वास्कुलर बंडल्स एब्सेंट हैं। ओके, सो दे लैक वास्कुलर बंडल्स, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। देन थैलोफाइट्स, यहाँ पर जो प्लांट्स हैं इनकी बॉडी बहुत सिंपल है। इट इज़ थैलॉइड, दे आर नॉन स्पर्मेटोफाइट्स। नॉन स्पर्मेटोफाइट्स, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग स्पीसीज। सो फाइट्स का मतलब है प्लांट एंड स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स। सो दीज प्लांट्स आर नॉट प्रोड्यूसिंग सीड्स। थैलोफाइट्स आर द प्लांट्स जिनकी बॉडी बहुत सिंपल है। इट इज़ नॉट differentiated into root, stem and leaf. Okay, moving ahead. General characters of algae. Algae ज़्यादातर aquatic होता है. It is found in fresh water as well as in marine water. There are certain algae which are found in fresh water, and there are certain algae which are found in saline or marine water. फ्रेश वाटर में भी मिलती है, मॉइस्ट सॉइल, मतलब जहाँ पर वाटर है वहाँ मिलेंगी। अब सॉइल चाहे मॉइस्ट हो, रॉक मॉइस्ट हो, स्टोन मॉइस्ट हो या वुड मॉइस्ट हो, तो जहाँ मॉइस्चर है, वाटर है, वहाँ पर आपको एल्गी मिलती है। सम आर फाउंड इन एसोसिएशन। कुछ ऐसे एल्गे होते हैं जो किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि एल्गी और फंजाई की एसोसिएशन को हम लाइकन बोलते हैं। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। आप लाइकन को देखोगे तो आप नहीं बता पाओगे कि विच इज़ एल्गल पार्ट एंड विच इज़ फंगल पार्ट, ठीक है। एंड वो लाइकन की एसोसिएशन में बोथ द एल्गल एंड फंगल पार्टनर आर बेनिफिशियल टू ईच अदर। देन वी हैव एल्गी ऑन एनिमल्स लाइक स्लॉथ बेयर। तो स्लॉथ बेयर की बॉडी को एल्गी कवर कर देती है, तो प्रेडेटर को पता नहीं चलता कि यहाँ पर स्लॉथ बेयर है, तो कैमोफ्लैज करने में हेल्प करता है। एल्गी का जो साइज़ है वो वाइड रेंज ऑफ साइजेस हैं उसमें, मतलब छोटी, बहुत छोटी यूनिसेलुलर एल्गी भी मिलेगी जो आपको नेकेड आई से नहीं दिखेगी, एंड बड़ी एल्गी भी दिखेगी जो बहुत ईजिली आपको नेकेड आई से दिख जाएगी। सो यूनिसेलुलर एल्गी एग्जाम्पल है आपका क्लेमाइडोमोनास। फिलामेंटस थ्रेड लाइक एल्गी है, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स। कॉलोनियल मतलब कॉलोनीज में है एल्गी, ग्रुप्स में है यहाँ पर, वॉलवॉक्स। और बहुत ही बड़ी मैसिव प्लांट बॉडी अप टू मीटर्स, it is kelps. Okay, so after this we are going to discuss about the classification of algae. क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी में प्रोसीड करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसी होती है। एल्गी में दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होगी, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ यूनिपेरेंटल, उसमें जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल होगा, उसमें माइटोटिक डिविजन इन्वॉल्व होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोटिक डिविजन इन्वॉल्व होती है, और वहाँ जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपीज़ नहीं होते, दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाई पेरेंटल, यहाँ पर मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल गेमीट फ्यूज करता है टू फॉर्म zygote, diploid structure. So reproduction in algae can be vegetative. Vegetative is example fragmentation. Fragmentation में क्या होता है, फिलामेंटस एल्गी है, बाई चांस वो फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है कोई एक्सीडेंटली या कैसे भी, तो फिर हर फ्रैगमेंट से एक न्यू एल्गी अराइज हो सकती है, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में यू हैव फिलामेंटस एल्गी, जो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, जैसे ये पर्टिकुलर एल्गी है, ये फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो गई, सो यू हैव 3 फ्रैगमेंट्स एंड दीज 3 फ्रैगमेंट्स डेवलप इनटू अ न्यू एल्गी नाउ, सो दिस इज फ्रैगमेंटेशन। देन यू हैव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में स्पोर फॉर्मेशन से होता है। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर एल्गी खुद हैप्लॉइड है,
तो वो माइटोसिस से स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी। तो एल्गी के जो स्पोर्स हो रहे हैं वो माइटोसिस से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं माइटोस्पोर्स। तो यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन ज़ूस्पोर्स जो है वो मोस्ट कॉमन स्पोर्स है एल्गी के, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज माइटोस्पोर्स। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस हो सकती है, एनाइसोगैमस हो सकती है, या ऊगैमस हो सकती है। गैमस यहाँ पर मतलब है फ्यूजन ऑफ गेमीट्स। तो आइसोगैमस में आइसो मतलब सेम मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स फ्यूज कर रहे हैं, एंड आइसो में डिफरेंट कर रहे हैं। ऊगैमस में क्या डिफरेंस है, आई विल टेल यू इन अ शॉर्ट व्हाइल। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको अभी बताया, इट इज़ बाय स्पोर्स। मेन प्लांट बॉडी जो एल्गी की है दैट इज हैप्लॉइड, और उसे हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। It produces the haploid spores by equational और mitotic division। तो haploid spores आपके haploid हैं और वो produce हुए हैं from haploid body by mitosis, तो उन्हें हम माइटोस्पोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, gametophyte is that part of the plant which produces gametes. Most common asexual spores are zoospores. Zoospores non motile होते हैं, उनमें flagella होता है, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, एंडोजिनस होते हैं, मतलब ज़ूस्पोरेंजिया एक बलून लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर बनते हैं। सो दे आर एंडोजिनस। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एल्गल स्पोर्स हैं फॉर्म्ड अंडर द फेवरेबल कंडीशंस। दे आर मोटाइल बिकॉज दे हैव फ्लैजिला। एंडोजिनस है, दे आर प्रोड्यूस इन ज़ूस्पोरेंजिया। बाइफ्लैजिलेट हो सकते हैं, क्वाड्रीफ्लैजिलेट हो सकते हैं, 2 फ्लैजिला हो सकते हैं इनमें, 4 फ्लैजिला हो सकते हैं, एंड मल्टीफ्लैजिलेट ईडोगोनियम में होते हैं। तो मल्टीफ्लैजिलेट बहुत सारे फ्लैजिला भी हो सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आई टोल्ड यू 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। यहाँ पे गेमीट का फॉर्मेशन भी होता है और गेमीट का फ्यूजन भी होगा टू फॉर्म जाइगोट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह से हो सकती है, एनाइसो, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। आइसोगैमस में क्या होता है, जो गेमीट्स फ्यूज हो रहे हैं वो सेम होते हैं, फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर मेल एंड फीमेल गेमीट्स, इसे हम आइसोगेमिट्स बोलते हैं। आइसोगेमिट्स मोटाइल भी हो सकते हैं, फ्लैजिला भी हो सकता है, दोनों में नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, फ्लैजिला लैक भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा। मोटाइल का एग्जाम्पल है क्लामाडोमोनास, नॉन मोटाइल का एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। मूविंग ऑन, एनाइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन हो रहा है, एन मतलब यहाँ पे डिसिमिलर, टू मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर मेल एंड फीमेल गेमीट्स, बोथ आर मोटाइल। ठीक है, तो डिसिमिलर कैसे है कि एक में आपका एपेक्स में फ्लैजिला है, एक में लेटरल साइड में फ्लैजिला है। oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फीमेल गेमीट नॉन मोटाइल और लार्जर होता है, और मेल गेमीट स्मॉलर और मोटाइल होता है। सो फ्यूजन ऑफ लार्जर नॉन मोटाइल फीमेल गेमीट, दिस इज द फीमेल गेमीट, with smaller motile male gamete, this is male gamete. Okay, so this is the difference between the 3 types of sexual reproduction in algae. Moving ahead, now classification of algae. So algae is divided into 3 different groups: chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae. The common name of chlorophyceae is green algae, phaeophyceae is brown algae and rhodophyceae is red algae. कहाँ पर मिलती है ये ब्राउन, ग्रीन और रेड algae? ग्रीन algae क्लोरोफाइसी आपको ज़्यादातर फ्रेश वाटर में मिलेगी। सम आर फाउंड इन मरीन वाटर, सॉल्टी वाटर, जैसे कि एसिटाबिलेरिया एंड अल्वा। ब्राउन algae ज़्यादातर मरीन वाटर में मिलती है, एंड रोडोफाइसी में रेड algae मरीन वाटर में मिलती है, बहुत कम फ्रेश वाटर में मिलेंगी। एग्जाम्पल है बैट्राकोस्पर्मम। सेल वॉल की बात करते हैं तो ग्रीन algae में सेल वॉल सेलुलोज की होती है, रिजिड होती है, उसमें 2 लेयर्स होती है सेल वॉल की, इनर सेलुलोजिक एंड आउटर पेक्टिन की। ओके, ब्राउन algae के अंदर सेल वॉल में सेलुलोज होता है, एल्जिन होता है,
एल्जिन एक हाइड्रोकोलॉइड या फाइकोकोलॉइड है जो एल्गी के अंदर बनता है. इट हैज़ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. रेड एल्गी में जो सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज होता है, पेक्टिन होता है, अदर पॉलीसल्फेट एस्टर्स होते हैं, फाइकोकोलाइड्स लाइक कैराटिनिन, फिनोरी एंड अगार होता है. नाउ ग्रीन एल्गी के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम पैरानॉइड बोलते हैं. वो स्टार्च और आपका प्रोटीन स्टोर करता है. ग्रीन एल्गी में जो पिगमेंट्स है दैट इज क्लोरोफिल ए. क्लोरोफिल ए आपका तीनों में मिलेगा. इट इज द प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो हर फोटोसिंथेटिक प्लांट में मिलता है. Found in all photosynthetic plants. यहाँ पर जो पिगमेंट्स है वो प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में. क्लोरोफिल ए के अलावा यू हैव क्लोरोफिल बी, xanthophyll एंड कैरोटीन. हेयर यू हैव क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजैंथिन. फ्यूकोजैंथिन की वजह से ही ब्राउन एल्गी ब्राउन दिखती है. एंड यहाँ पर आपके पास क्लोरोफिल डी, फाइकोराइथ्रिन. फाइकोराइथ्रिन की वजह से रेड एल्गी रेड कलर की दिखती है. सो हेयर यू हैव क्लोरोफिल बी, हेयर सी एंड हेयर डी. देन ब्राउन एल्गी की जो बॉडी होती है वो डिफरेंशिएटेड होती है, फ्रॉन्ट, स्ट्राइप एंड होल्ड फास्ट. This part is frond. This is stripe. And this is hold fast. रेड एल्गी की बात अगर हम करते हैं तो जितना आप नीचे जाते हो ओशन या सी में, इट हैज़ मोर फाइकोराइथ्रिन पिगमेंट, जिनकी फाइकोराइथ्रिन पिगमेंट सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. ठीक है. ग्रीन एल्गी में अगर जो एक्स्ट्रा फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है. रिजर्व फूड इज स्टार्च. ब्राउन एल्गी में मैनिटॉल और लेमिनारिन की तरह स्टोर होता है. और रोडोफाइसिड रेड एल्गी में वो फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है. फ्लोरिडियन स्टार्च स्ट्रक्चरली इट इज सिमिलर टू अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन. ग्रीन एल्गी में रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से होता है. इनफैक्ट ऑल द 3 टाइप्स ऑफ एल्गी शो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर जूस्पोर से होगा. ब्राउन एल्गी में भी जूस्पोर से होगा. रेड एल्गी में फ्लैजिला एब्सेंट होता है, तो चाहे स्पोर्स हो चाहे गेमीट्स हो, दे आर नॉन मोटाइल. सो यहाँ पे नॉन मोटाइल स्पोर से होगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगैमस हो सकता है ग्रीन एल्गी में. ब्राउन एल्गी में भी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ओगैमस हो सकता है. रेड एल्गी में इट इज ओगैमस ओनली एंड हाईली एडवांस्ड होता है ओगैमस टाइप. यहाँ पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स थोड़े एलैबोरेट होते हैं, डिटेल में होते हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं. फ्लैजिला की बात करते हैं तो ग्रीन एल्गी में 2 से 8 फ्लैजिला हो सकते हैं, इक्वल होते हैं और एपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं. ब्राउन एल्गी में 2 फ्लैजिला होंगे, अनइक्वल होंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा और लेटरल साइड पे प्रेजेंट होगा. और मैंने अभी आपको बताया कि रेड एल्गी में चाहे स्पोर्स हो चाहे गेमीट्स हो, फ्लैजिला एब्सेंट होता है. मूविंग अहेड. Now the examples of the algae. Green algae में we have Chlamydomonas, Spirogyra, Eulothrix, Cara, Alba, Acetabularya, Chlorella. Brown algae में we have Ectocarpus, Dictyota, Laminaria, Calps, जिसे हम Microcystis is the scientific name, Sargassum, Fucus. और red algae में we have Porphyra, Polysiphonia, Gracilaria, Gelidium and Batrachospermum. Now we are going to discuss about the second group of plants, that is bryophytes. Bryo means moss and phytes here is plants, so these are the moss plants.
ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स है, बट ये इतने सक्सेसफुल नहीं थे बिकॉज इन्हें अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दे रिक्वायर वाटर, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। लैंड पर होकर भी इन्हें वाटर की ज़रूरत है, तो दे आर एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, सो दे आर एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इनके पास वास्कुलर टिश्यू नहीं है, तो ये ए ट्रैक्योफाइट्स। इनके पास एम्ब्रियो है, और सबसे पहले एम्ब्रियो ब्रायोफाइट्स में बना था, सो दे आर फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स। सीड्स नहीं है, तो नॉन स्पर्माटोफाइट्स। इनमें कुछ फीचर्स एल्गी के हैं और कुछ फीचर्स हायर प्लांट्स दैट इज टेरिडोफाइट्स के हैं, सो दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एल्गी एंड टेरिडोफाइट्स। एल्गी के फीचर्स कैसे हैं? बिकॉज ये अपनी लाइफ का कुछ पार्ट एक्वेटिक हैबिटेट में कंप्लीट करते हैं एंड कुछ पार्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में कंप्लीट करते हैं। मूविंग अहेड, commonly they are found in damp, humid and shady places. इनकी जो बॉडी होती है थैलॉइड होती है, रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होती। कुछ टेरिडोफाइट्स में रूट लाइक, स्टेम लाइक या लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, बट ट्रू रूट, ट्रू लीफ एंड ट्रू स्टेम एब्सेंट होती है। मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स की गेमेटोफाइट होती है, जो हैप्लॉइड होती है। गेमेटोफाइट वो पार्ट है प्लांट का जो गेमीट्स बनाने की काम आता है। इट इज अ पार्ट ऑफ द प्लांट दैट प्रोड्यूसेस गेमीट्स। सो ये आपका ब्रायोफाइट है, उसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको यहाँ पर हम बोल रहे हैं राइजॉइड्स। ये ट्रू रूट्स नहीं है, रेडिकल से अराइज नहीं करी है, दे आर राइजॉइड्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर। ब्रायोफाइट्स एक ही तरह के स्पोर्स बनाते हैं, तो इसलिए हम इन्हें होमोस्पोरस बोलते हैं। जब ये स्पोर्स सूटेबल सबस्ट्रेटम या सरफेस पे फॉल करते हैं, तो ये स्पोर्स जर्मिनेट हो जाते हैं गेमेटोफाइट में। स्पोर्स हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड स्पोर से हैप्लॉइड गेमेटोफाइट बनेगा। स्पोर्स या तो डायरेक्टली आपका गेमेटोफाइट में डेवलप हो जाएंगे, ऐसा होता है लिवरवर्ट्स में, या फिर वो प्रोटोनीमा में कन्वर्ट होंगे। प्रोटोनीमा इज द यंग स्टेज ऑफ द मॉस प्लांट्स। तो ये अगर जुवेनाइल स्टेज ऑफ गेमेटोफाइट बनाते हैं, तो ये प्रोटोनीमा में कन्वर्ट होते हैं। प्रोटोनीमा से, प्राइमरी प्रोटोनीमा से सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनेगा, और फिर लीफी अडल्ट गेमेटोफाइट बनता है मॉसेस के केस में। तो मॉसेस में ऐसा होता है। मूविंग अहेड, लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स की जो थैलस होती है वो लिवर लाइक होती है। ये उसके राइजॉइड्स हो गए, ये लिवर शेप थैलस है। हैबिटेट की अगर हम बात करें, इट इज फाउंड इन मॉइस्ट शेडी प्लेसेस। गेमेटोफाइट थैलॉइड होगा, रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होगा। डॉर्सी वेंट्रल होगा, डॉर्सी वेंट्रल मतलब डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस अलग अलग दिखेगा, ठीक है। डाइकोटमसली ब्रांच्ड होगा, डाइकोटमसली ब्रांच का मतलब होता है ऐसे, ये ब्रांचिंग है। ब्रांचिंग है, दो में ब्रांचिंग हो रही है, तो डाइकोटमसली ब्रांच। ग्रीन होगा, फोटोसिंथेटिक होगा। ये कंडक्टिंग ट्यूब्स हैं जो कंडक्ट करती है फूड एंड वाटर। यहाँ पे वैस्कुलर बंडल्स नहीं है, तो कंडक्टिंग ट्यूब्स कंडक्ट फूड एंड वाटर। ये सेक्स ऑर्गन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे गैमा कप्स होते हैं इस तरह के, इस तरह के गैमा कप्स प्रेजेंट होते हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर। On the ventral side, scales are present and rhizoids are present. Moving ahead. ब्रायोफाइट्स मोनोशियस भी हो सकता है, डायोशियस भी हो सकता है। ध्यान से समझना इन टर्म को। मोनोशियस का मतलब है मोनो मतलब वन एंड ओशियस मतलब होम, तो एक ही घर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, सो दिस इज मोनोशियस। और डायोशियस मतलब टू, डाई मतलब टू एंड ओशियस मतलब होम, तो अलग अलग घर हैं। Male part is present on the different gametophyte and female sex organ is present on different gametophyte. So male and female sex organs are on the same plant body. Rixia forella में ऐसा होता है, और dioecious में male and female sex organs are on different plant body. ऐसा मार्केंशिया में देखने को मिलता है। तो यहाँ देखो आप, मार्केंशिया में ये आपका एंथरीडियम है। एंथरीडियम की स्टॉक को हम एंथरीडियोफोर बोलते हैं। फोर का मतलब होता है स्टॉक। ये आर्चिगोनियम है, और आर्चिगोनियम की स्टॉक को हम आर्चिगोनियोफोर बोलते हैं। दिस इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन
and this is the male sex organ. Moving on. Next we are going to discuss about pteridophytes. Pteridophytes लैंड पर मिलते हैं और आपको एंड दे आर द फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स. ब्रायोफाइट्स की जो हमने बात करी थी तो हमने डिस्कस किया था कि ब्रायोफाइट्स लैंड पे भी होते हैं, वाटर में भी होते हैं, पर वो सक्सेसफुल नहीं है लैंड प्लांट्स में. टेरिडोफाइट्स सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स में उनमें जो रूट्स होती है वो वेल डेवलप्ड होती हैं. ये इनमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है तो दे आर ट्रैक्योफाइट्स एंड दे आर द फर्स्ट ट्रैक्योफाइट्स. एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है तो एम्ब्रियोफाइट्स. सीड्स एब्सेंट है तो नॉन स्पर्मेटोफाइट्स. इसमें हॉर्स टेल्स आते हैं और फर्न्स आते हैं. इनको हम बोटानिकल स्नेक्स भी बोलते हैं बिकॉज जब स्नेक्स का एवोल्यूशन हो रहा था उसी टाइम पे टेरिडोफाइट्स का भी एवोल्यूशन हो रहा था. टेरिडोफाइट्स प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं तो इसलिए हम इन्हें बोटानिकल स्नेक्स बोलते हैं. ये स्नेक्स के साथ इवॉल्व हो रहे थे. स्नेक्स एंड टेरिडोफाइट्स इवॉल्व्ड एट द सेम टाइम. They are also called as vascular amphibians of plant kingdom because इन्हें भी water की requirement होती है to complete their life cycle. Okay. और इनके पास vascular tissue भी है and they require water for the fertilization. They are intermediate between the bryophytes and spermatophytes. ब्रायोफाइट्स और सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्शन है. कुछ फीचर्स इनमें ब्रायोफाइट्स के भी हैं और कुछ सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के भी हैं. मूविंग अहेड. जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स. कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस में मिलेंगे आपको ये. एवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जिनके पास वैस्कुलर टिश्यू है. सो दे आर द फर्स्ट ट्रैक्योफाइट्स. इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड है इनटू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स. साइलोटम और राइनिया ऐसे टेरिडोफाइट्स है विच आर रूटलेस एंड लीफलेस. जिन लीव्स के पास स्पोरेंजिया होता है उन लीव्स को हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स. स्पोरेंजिया एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है. दिस इज स्पोरेंजिया and this is the leaf. The leaf containing sporangia is called as sporophyll. Sporangia एक balloon-like structure है which contain spore mother cells. And spore mother cells में meiosis होगी to form haploid spores. Pteridophytes के अंदर sporophylls are compactly arranged. जैसे कि यहाँ पर suppose ये एक sporophyll है, एक leaf है जिसके अंदर you have sporangia. So these are the sporophylls. They are compactly arranged to form a structure like cone. Okay. So strobilus या cone बनाते हैं. Plural is strobili. Main plant body pteridophytes की sporophyte है. ठीक है. Gametophyte of pteridophytes is more reduced than that of bryophytes. तो जो gametophyte pteridophytes का है वो ज़्यादा reduced है as compared to that of bryophytes. Moving on. Pteridophytes ज़्यादातर homosporous है. That means they are producing only one type of spores. But there are few pteridophytes like Salvinia, Selaginella, Azolla, Marsilia, which are producing two types of spores. So they are also called as heterosporous pteridophyte. Homosporous means same type of spores, produces one type of spores, और वो स्पोर फिर बनाता है गेमेटोफाइट जिसके अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होते हैं. सो सच गेमेटोफाइट इज कॉल्ड एज मोनोशियस. तो आप कह सकते हो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में जो गेमेटोफाइट होगा वो मोनोशियस होगा क्योंकि ऐसे गेमेटोफाइट में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट बॉडी पे होगा. ठीक है. हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट डिफरेंट तरह के स्पोर्स बनाता है. दो डिफरेंट तरह के स्पोर्स बनाएगा. तो जो फीमेल स्पोर होगा उसे हम बोलते हैं मेगा स्पोर, और जो थोड़ा छोटा स्पोर होता है उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर. वो बनाता है आपका मेल गेमेटोफाइट. मेगा स्पोर से बनता है फीमेल गेमेटोफाइट एंड माइक्रोस्पोर से बनता है मेल गेमेटोफाइट. तो ये आपका डायोशियस हो गया. मेल और फीमेल गेमेटोफाइट अलग अलग प्लांट बॉडी पे बन रहे हैं. सो दिस इज कि हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट से डायोशियस गेमेटोफाइट मिलते हैं.
Dioecious is two homes, that is two gametophytes. Male and female sex organs are present on different bodies in the case of heterosporous pteridophytes. I hope this is clear. Moving ahead. Next we are going to discuss is gymnosperms. Gymnos का मतलब होता है naked and sperma का here मतलब है seeds. तो ये ऐसे plants हैं जिनमें seeds naked होती हैं, उनके आसपास fruit surrounded नहीं होता. ठीक है. So they are the small group of plants. They are embryophytes. That means embryo is present. They are tracheophytes, contains vascular bundles. They are archegoniates, contains archegonia. Archegonia is female sex organ. Archegonium in gymnosperms is smallest. Smallest archegonium. They are spermatophytes. Spermatophytes, they produces seeds. Sporophyte इनकी main plant body है और they do not bear flowers. They bear seeds which are naked. Okay. जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो ये प्लांट्स की ट्री हैबिट होता है. छोटे ट्रीज भी हो सकते हैं, मीडियम साइज ट्रीज भी हो सकते हैं, बड़ा ट्री भी हो सकता है, लाइक सिकोआ. सिकोआ इज द टॉलेस्ट प्लांट. ओके. प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स. तो अच्छी खासी बोर्ड. और ये ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स होते हैं. रूट्स की बात करते हैं तो रूट्स टैप रूट्स होती हैं, बट कुछ स्पेशल टाइप की रूट्स मिलती हैं साइकस में, कोरोलॉइड रूट्स. कोरोलॉइड रूट्स कोरल शेप की होती हैं. वो एसोसिएटेड होती हैं विद दी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक एनाबिना साइकडे. और वो रूट्स जो होती हैं वो एनाबिना साइकडे को क्या कहते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करती हैं, और एनाबिना साइकडे रूट्स को फिक्स नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है. तो इट्स अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन. पाइनस के अंदर माइक्रोराइजल रूट्स मिलती हैं. यहाँ पर जो फंगल एसोसिएशन है, जो फंजाई है, वो रूट्स के साथ इस तरह से एसोसिएटेड है कि वो रूट्स का वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन का एरिया एक्सपैंड करने में हेल्प करती है. एज अ रिजल्ट वो फंजाई की जो फिलामेंट्स हैं वो रूट्स के लिए ज़्यादा वाटर और ज़्यादा मिनरल्स एब्जॉर्ब करके देते हैं. इन रिटर्न जो पाइनस की रूट्स हैं फंजाई को फूड और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है. सो इट इज़ ऑल्सो अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन. जिम्नोस्पर्म्स के अंदर लीफ सिंपल भी हो सकती है लाइक दिस, या कंपाउंड भी हो सकती है. सिंपल लीफ फाइनस में मिलती है, कंपाउंड लीफ साइकस में मिलती है. जिम्नोस्पर्म्स में लीफ फोलिएज भी हो सकती है, ग्रीन निडल लाइक, या स्केल लीफ भी हो सकती है, ब्राउन स्केल लीफ. स्केल लीफ भी हो सकती है. ओके. माइक्रोस्पोरोफिल is leaf containing microsporangia. माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स.
microspore mother cells which are diploid. They undergo meiosis, reductional division to form microspores which are haploid, और microspore से ही बनते हैं pollen grains. Okay. Megasporophyll is the leaf-bearing megasporangium. मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं. मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर होती है meiosis to form megaspores which form endosperm by mitotic division. I hope this all is clear to you all. Moving ahead. मेल गेमेटोफाइट पॉलन ग्रेन जो होता है, अभी मैंने आपको बताया, जो भी गेमेटोफाइट होता है उसके अंदर गेमीट होता है. इट प्रोड्यूसेस गेमीट्स. So male gametophyte is pollen grain which contains male gamete and it is formed from microspores, we just discussed. Female gametophyte includes endosperm जो fertilization होने से पहले बन जाता है. It is a pre-fertilized product in the case of gymnosperms. और फिर वो fertilization के बाद जब zygote बनेगा, zygote के बाद embryo बनेगा, उसको nutrition provide करता है. So female gametophyte includes endosperm which is pre-fertilized product and it provides nutrition to the developing embryo. और फीमेल गेमेटोफाइट में आर्चिगोनिया भी आता है जिसके अंदर फीमेल गेमीट्स होते हैं. ये मेल और फीमेल गेमीट्स डायरेक्ट फ्यूज करते हैं. पॉलिनेशन जो होता है ये डायरेक्ट होता है, मतलब फीमेल में यहाँ पर ओव्यूल होगा, ओव्यूल ओपन होगा और मेल गेमीट पॉलन ग्रेन आके सीधा ओव्यूल में एंटर कर जाएगा. सो पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म्स इज डायरेक्ट. Pollen grain directly lands in the ovule क्योंकि यहाँ पे कोई स्टिग्मा नहीं है. Then male और female gamete fuse करते हैं to form zygote. This is called as fertilization. Zygote is diploid. Zygote से embryo बनता है which is diploid by mitosis. और embryo is present in the naked seed in gymnosperms. तो ये आपकी naked seed है, उसमें आपका embryo present है. Embryo में this part is plumule, then this is radicle, this is embryonal axis, सीड्स जो होती है जिम्नोस्पर्म्स में वो जनरली मल्टी कॉटिलेडनरी होती है, उसमें बहुत सारे कॉटिलेडन्स होते हैं, बट साइकस के अंदर वी हैव ओनली 2 कॉटिलेडन्स. Now we are going to refer certain questions based on this chapter. Which one is wrongly matched? Uniflagellate gametes Polysiphonia, biflagellate zoospores brown algae, unicellular organism chlorella and gamma cups in Markensia. तो हमने स्टडी किया था कि गैमा कप्स मिलते हैं मार्केंशिया में, ये ठीक है. क्लोरेला आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इट्स एन alga, ये भी ठीक है. बायफ्लैजेलेट जूस्पोर्स मिलते हैं इन ब्राउन algae. पॉलीसाइफोनिया इज रेड alga और रेड alga में फ्लैजिला नहीं होता, सो इट इज नॉट फ्लैजिलेटेड. So this is incorrect match. So answer to this question is option number 1. Moving on. Which one of the following statement is wrong? Algae increase the level of dissolved oxygen in the immediate environment. Algin is obtained from red algae and carrageenan from brown algae. Agar-agar is obtained from Gelidium and Gracilaria. And Laminaria and Sargassum are used as food. So Laminaria और Sargassum आपके brown algae हैं, ये food की तरह use होते हैं. Agar-agar, Gelidium और Gracilaria ये red algae है, इससे obtain होता है और ये liquid medium को solidify करने में help करता है. Algin is obtained from brown algae
and carrageenan is obtained from red algae. So this is the incorrect match. ये wrong statement है और आपसे wrong statement ही आपको select करनी है. और एल्गी क्योंकि फोटोसिंथेटिक होता है तो वाटर के अंदर एल्गी जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो वो ऑक्सीजन रिलीज करता है. इट शोज ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस. सो वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज करेगा इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट. तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Select the correct statement. The leaves of gymnosperms are not well adapted to extremes of climate. Gymnosperms are both homosporous and heterosporous. Salvinia, ginkgo and pinus all are gymnosperms. Sequoia is one of the tallest tree. Leaves of gymnosperms needle like होती हैं तो वो surface area reduce कर देती हैं तो transpiration कम होता है. उनके अंदर स्टोमेटा संकन होता है to reduce the transpiration. So basically they can withstand extreme conditions. इस तरह से बनी होती है कि उनके पास thick cuticle है, extreme conditions tolerate कर सकती हैं. तो ये statement आपकी गलत है. Not well नहीं होता. They are well adapted to withstand the extreme environment and extreme climate. Gymnosperms homosporous नहीं होते, heterosporous होते हैं. 2 तरह के spores बनाते हैं. Salvinia, ginkgo और pinus gymnosperm नहीं है. Salvinia is a pteridophyte. Ginkgo and pinus are gymnosperms. Sequoia, one of the tallest tree, is a gymnosperm. So answer to this question is option number 4. Moving on to the next question. In which of the following gametophyte is independent free living? तो इनमें से कौन से plants में gametophyte independent और free living है? So Pinus is a gymnosperm. यहाँ पे main plant body is sporophyte. यहाँ पे gametophyte free living नहीं होता. Funaria is bryophyte. Marchantia bryophyte है. टेरेस आपका टेरिडोफाइट है. यहाँ पर भी आपको फ्री लिविंग मिल जाएगा. तो जेमनो नॉट इंडिपेंडेंट किस में नहीं है? पाइनस में इंडिपेंडेंट नहीं है. यहाँ पर आपका स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होता है एंड गेमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट. So answer हो गया option number 1. Okay, so moving on to the next question. This is the last question of today's class. Select the wrong statement. Anisogamous differ either in structure, function or behavior. In oogamous, female gamete is smaller, motile, while male gamete is larger and non-motile. Chlamydomonas exhibits both isogamy and anisogamy, and Fucus shows oogamy. Isogametes are similar in structure, function and behavior. So now, isogametes structure, function और behavior में similar होते हैं. बात बिल्कुल ठीक है. आपको identify करनी है wrong statement. Chlamydomonas में isogamy भी होती है, anisogamy भी होती है और Fucus में oogamy होती है. ये बात भी ठीक है. Anisogamous का मतलब है different. डिफर कैसे करते हैं? वो या तो स्ट्रक्चर में डिफरेंट होंगे या फंक्शन में या फिर बिहेवियर में. ये बात भी ठीक है. oogamous के अंदर फीमेल गैमीट नहीं, मेल गैमीट स्मॉल होता है और मोटाइल होता है एंड फीमेल गैमीट लार्जर होता है और नॉन मोटाइल होता है. दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2. With this, we have completed our today's class. I'm going to deal with the next chapter in the next class. If you have any doubt, please post in the chat box. Thank you and have a great day. Bye-bye.